हेलो बच्चों, इफ़ यू आर ए स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स अप टू क्लास 12 और आपको किसी भी क्वेश्चन को किसी भी सवाल को करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप घबराने की, परेशान होने की या इधर उधर भटक कर अपना टाइम बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपका अपना चैनल मैथमेटिक्स विद शरद आ चुका है। आपको बस बेल आइकन प्रेस करके इसके चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसके वीडियो देखने हैं। आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे और सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई चली जाएंगी। ओके, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट योर स्टडी। बच्चों, टुडे आई एम डिस्कसिंग द प्रॉब्लम ऑफ एक्सरसाइज 8.1. द टॉपिक नेम इज क्वाड्रिलेटरल. So let's start question number 1. The angles of quadrilateral are in the ratio 3, 5, 9 and 13. Find the angles of quadrilateral. Let the ratio be x. That's why the first angle will be 3x. That is angle A. Similarly, angle B. The ratio is 5. So that becomes 5x. Third angle, the ratio is 9. That's why it's become 9x degree. That is angle C. And the fourth angle, the ratio is 13. That's why it is equal to 13x. The angle is D. As you know, according to concept, the sum of all four angles of a quadrilateral, angle A plus angle B plus angle C plus angle D, is equal to 360 degree. You know very well about it. So angle A, that is 3x. Angle B, 5x. Angle C, 9x. And the angle D, that is 13x. The sum of all these four angles is equal to 360 degree. The sum of all four angles in term of x will be 30x. So I can write here 30x is equal to 360 degree. And you know very well, that's why x degree will equal to 360 degree upon 30, and you may write here 12 degree. It means the value of x is 12 degree. So that's why angle A, which is equal to 3x, will be equal to 3 into 12, yani 36 degree. That is 36 degree. Similarly, angle B, that is equal to 5x. We place the value of x 5 into 12 and that is equal to 60 degree. Correct बच्चों? Similarly, angle C, that is equal to 9x. 9 into 12, that is equal to 108 degree. Similarly, angle D, that is equal to 13 into x, the value of x, that is 12, and we will write down the result will be 156 degree. So you get the all four angles of triangle. First angle A is 136, angle B is equal to 60 degree, angle C is equal to 108, angle D is equal to 156. This is your final answer and this is the complete solution of this question. Now question number 2. If the diagonals of a parallelogram are equal, prove that it is rectangle. Bachcho, now solution of question number 2. Here is given ABCD is a parallelogram and diagonal AC is equal to diagonal BD. So I have written here डायगोनल AC और डायगोनल BD आपस में इक्वल है। अब हमें क्या प्रूफ करना है? इन ए पैरेललोग्राम
एंड इन ए रेक्टेंगल देयर इज ओनली वन डिफरेंस कि अगर हम पैरेललोग्राम के इंटीरियर एंगल्स को 90 डिग्री शो कर देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली रेक्टेंगल बन जाएगा। तो अब हमें यहाँ पर एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी को जो कि इंटरनल एंगल है इन्हें 90 डिग्री प्रूफ करना है। सो प्रूफ और ABCD इज रेक्टेंगल, एक ही बात है, हमें इसमें से कुछ भी प्रूफ कर दें। ABCD इज रेक्टेंगल। नाउ रेडी फॉर प्रूफ। इन ट्राइंगल DAB एंड ट्राइंगल CBA, सबसे पहले हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। साइड AB is equal to side AB as you are looking here। ये आप देख रहे हैं, ये ट्राइंगल DAB में भी है और AB साइड CBA में भी है, because so we can say this is the common। ठीक बच्चों, द सेकंड साइड ट्राइंगल DAB में आप देखिए, जब हम पहले इसे कंसीडर कर रहे हैं तो DA साइड, ठीक है, DA साइड विल इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगी? CBA में CB साइड के, CB साइड। द कॉज ऑफ इट, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। आप देख रहे हैं DA और CB साइड जो दोनों ट्राइंगल की साइड हैं, DAB और CBA की, ये अगर देखा जाए तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड भी तो हैं, दैट्स व्हाई दे आर इक्वल। द थर्ड थिंग, पहले वाले ट्राइंगल का डायगोनल DB, दूसरे वाले ट्राइंगल CBA का CA, यानी DB इज इक्वल टू CA, ये आपस में इक्वल है बिकॉज दिस इज गिवन, DB is equal to C। Therefore by property SSS, therefore by SSS property we can say the both triangle DAB and triangle CBA are congruent। जब ये दोनों congruent हो गए then by CPCT we can say angle DAB पहले वाले triangle का, therefore by CPCT is equal to angle CBA by CPCT, angle CBA, and let us suppose that is equal to x degree। और आप अच्छी तरह जानते हैं यहाँ गिवन है DABC is a parallelogram and the sum of adjacent angle of a parallelogram is equal to 180 degree। तो हम कह सकते हैं DAB एंगल DAB प्लस एंगल CBA, angle CBA is equal to 180 degree। The sum of two adjacent angle of a parallelogram is equal to 180 degree। ठीक है बच्चों, ये यहाँ पर लिख दिया गया है और आपको अभी हमने जस्ट प्रूफ किया है DAB और CBA दोनों कैसे एंगल हैं, x डिग्री x डिग्री, x degree plus x degree that is equal to 180 degree। So I can write here 2x equal to 180 degree, यानी हम ये कह सकते हैं कि the value of x is equal to 180 degree upon 2। इस तरह से x की वैल्यू 90 डिग्री आ गई, यानी हम ये कह सकते हैं DAB और CBA की वैल्यू 90 डिग्री है। DAB ये एंगल भी और CBA दोनों कैसे आ गए, 90 डिग्री 90 डिग्री। ये मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, DAB एंड CBA दोनों 90 डिग्री आ गए। एक पैरेललोग्राम में दो एडजेसेंट एंगल 90 डिग्री आ गए। एंड यू नो वेरी वेल द क्वालिटी ऑफ ए पैरेललोग्राम, द अपोजिट एंगल आर इक्वल। जब एंगल A 90 डिग्री है तो एंगल C इसके सामने का भी वो भी 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक इसी तरह से एंगल B 90 डिग्री है तो उसके सामने का एंगल D भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो इस चीज को मैं लिख देता हूं अभी। देयरफॉर एंगल DAB that is equal to x degree and the angle CBA is equal to x degree that is equal to 90 degree।
अब DAB और CB आ गए, इसी चीज को मैं वापस लिखता हूं, DAB के इक्वल हो जाएगा एंगल DCB, देयरफॉर एंगल DCB इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसका कॉस हो जाएगा, एंड अभी बताता हूं कॉस, और उसके बाद एंगल B यानी एंगल CDA is equal to 90 degree is equal to angle CBA equal to 90 degree. The cause behind this opposite angle of parallelogram are equal. ठीक है, इस तरह से जब सारे एंगल आपके 90 डिग्री आ गए, दैट्स वाई वी कैन से ABCD इज ए रेक्टेंगल। ठीक है बच्चों, इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, शो दैट डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, देन इट इज ए रोम्बस। यानी क्वेश्चन नंबर 3 में आपको प्रूफ करना है कि ऑल फोर साइड AB, BC, CD एंड DA ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल। तो गिवन है ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल एंड इट्स डायगोनल AC एंड डायगोनल BD एक दूसरे को मिड पॉइंट पर कट करते हैं, यानी AC डायगोनल का मिड पॉइंट भी O है और BD डायगोनल का भी मिड पॉइंट भी O है, और एंगल बिटवीन द इंटरसेक्टिंग पॉइंट एट द इंटरसेक्टिंग पॉइंट बिटवीन द डायगोनल इज 90 डिग्री, यानी ये सारे एंगल O पर बनने वाले सारे एंगल 90 डिग्री हैं। ये हमें प्रूफ करना है कि इसकी चारों साइड AB, BC, CD एंड DA इस क्वाड्रिलेटरल के इक्वल हैं, और गिवन है आपको डायगोनल AC, BD एक दूसरे को मिड पॉइंट पर कट करते हैं, यानी AC का भी मिड पॉइंट O है, BD का भी मिड पॉइंट O है, और एंगल AOB, BOC, COD, DOA ये चारों एंगल 90 डिग्री हैं, ये आपको गिवन है। इस चीज को मैंने मेंशन कर दिया है, DO इज इक्वल टू BO ये गिवन है, और OC इज इक्वल टू OA ये भी मैंने मेंशन कर दिया। साथ में एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अब हमें प्रूफ करना है। ठीक बच्चों, ये चीज हमें प्रूफ करके लानी है। तो सबसे पहले प्रूफ में हम कंसीडर कर रहे हैं ट्राइंगल AOB एंड COB, AOB एंड COB। आप अच्छी तरह से जानते हैं बच्चों, AO इज इक्वल टू OC ये आपको यहाँ पर गिवन है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ AO इज इक्वल टू OC, दिस इज गिवन। पहली चीज गिवन है, और आप अच्छी तरह ये भी जानते हैं कि OB इज द कॉमन, OB इक्वल टू OB दैट इज इक्वल टू कॉमन। ठीक है बच्चों, दो चीजें आपके पास आ चुकी हैं। तीसरा AOB इज इक्वल टू COB, क्योंकि दोनों 90 डिग्री हैं। एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COB, इसको आप लिख सकते हैं गिवन 90 डिग्री ईच गिवन, ये चीज आपको गिवन है। इसके बाद अब आप मुझे बताएंगे कौन सी प्रॉपर्टी बनती है। साइड के इक्वल, साइड कॉमन, और बीच का इनका एंगल 90 डिग्री, साइड एंगल साइड, दैट्स वाई देयरफॉर बाय SAS I can say these two triangle, कौन सा ट्राइंगल AOB is congruent to triangle COB। ठीक है बच्चों, that's why we can say by CPCT, therefore by CPCT we can say AB is equal to CB, AB is equal to CB। ठीक है, जिसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1।
बच्चों ठीक इसी तरह से BOC एंड DOC इन ट्राइंगल BOC एंड ट्राइंगल DOC बाई SSS हम इन्हें प्रूफ कर सकते हैं बाई SAS, जैसे कि हमने ऊपर प्रूफ किया था बाई SAS वी कैन प्रूव दैट BOC इज कॉन्ग्रुएंट टू DOC। अब BOC और DOC में डेट्स वाई बाई CPCT अब हम इसे कह सकते हैं कि BC इज इक्वल टू CD बाई CPCT BC इज इक्वल टू CD। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। किसी भी चीज को हम दोबारा किसी भी क्वेश्चन में प्रूफ नहीं करते हैं, सेम क्वेश्चन में किसी भी चीज को दोबारा प्रूफ नहीं करते हैं और हम उसे डायरेक्ट सिमिलरली लिखकर छोड़ देते हैं। सिमिलरली वी कैन से ट्राइंगल, यहां देखिए COD और AOD आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो मैं यहां लिख देता हूं ट्राइंगल AOD is congruent to triangle COD by the property SAS। यहां मैं लिख देता हूं by the same property SAS। ठीक है, कौन सा AOD और COD या DOC ये दोनों जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम कह सकते हैं DC इज इक्वल टू DA, जिसको मैंने नाम दे दिया थर्ड। तो अब आप देख रहे हैं कि AB BC के इक्वल और BC CD के इक्वल और CD या DC DA के इक्वल। देयरफॉर अब मैं यहां लिख सकता हूं बाई इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड वी कैन से AB is equal to BC is equal to CD equal to DA। ये सारी की सारी साइड आपस में इक्वल हो गई। That's why this quadrilateral is rhombus। Therefore ABCD is rhombus। यही तो रोम्बस की क्वालिटी होती है कि उसकी चारों साइड इक्वल होती हैं। आप इसको अल्टरनेटिव मेथड से भी कर सकते हैं यहाँ के बाद, ठीक है, जो मैंने AOD लिखा हुआ है कौन सा, यहाँ के बाद आप दूसरा मेथड भी यूज कर सकते हैं कौन सा, ट्राइंगल AOB और COD को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके। चॉइस इज योर, आप किसी भी तरह से प्रूफ कर सकते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 3 में एक ह्यूमन एरर हो गई है। मैथमेटिक्स में ह्यूमन एरर बहुत होती हैं। वो क्या ह्यूमन एरर हुई है वो आप यहाँ देख लीजिए। ये OD नहीं होगा, हमने कौन सा ट्राइंगल लिया है, AOB एंड ट्राइंगल COB। तो इन दोनों ट्राइंगल में जब हम लिखेंगे तो AO इज इक्वल टू OC आएगा। जैसे मैंने बाय ह्यूमन एरर यहाँ पर OD लिख लिया था तो बाय मिस्टेक अब मैं इसको वापस C कर रहा हूं। ठीक है बच्चों, सो बी अटेंटिव। तो मैं इसको C कर देता हूं, आप लोग आगे से ध्यान रखिए, इसे एज ए C कंसीडर कीजिए। OA इज इक्वल टू OC। ठीक है, ये वाली साइड इसके इक्वल है और इधर वाली साइड इसके इक्वल है। ठीक है।